a very good young scholar who has had a few sessions of Vishnu Sahasranam in the foundation, and it was very interesting, and we learned so many new things from him. And today he's taking us to Nirvan Stotram Shivoham, which is also so profound, and I'm sure we will all learn a lot of new things from him. Thank you. Thank you, Ritvik. Over to you. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Good evening, everybody. I am Ritik Bhattacharya. So, we always know that the question rises within us that who am I? मैं कौन हूँ? Even Vedantas and Upanishad says many verses, very long text we have that who I am. But it is very interesting that Adi Shankaracharya, the establisher of, I can say, a modern technology to Sanatan Dharma. Without him, the present situation of Sanatan Dharma wouldn't be possible. So he himself was Shiva Avatar. So we know everything that Shankaracharya, Adi Guru Shankaracharya has done many things. Ritik, So, can you say, you can say, talk in Hindi answer. also. Continue in Hindi. Continue in Hindi. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है. तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से हमारे अध्यात्म को एक नई दिशा दिया था और हमारे सनातन धर्म को एक नया रास्ता दिखाया था, उन्हीं का एक उत्तर है ये. उनसे किसी ने सवाल पूछा था at that young age when he was wondering what to do, what not to do, and he was wandering in the jungles of central India. तो वो पहुंच गए ओमकारेश्वर. ओमकारेश्वर में गुरु गोविंद पद जी का आश्रम था. वहां पे वो ध्यान कर रहे थे गुफा के अंदर. You know, it is a very dense forest जहाँ पे वो गए थे और वो नर्मदा जी के तट पे था वो गुफा. तो आदि शंकराचार्य जी was a young man that time, 21 years old. तो उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी. He was a sannyasi that time. He went there और उन्होंने आशीर्वाद लिया उसका. तो गुरु गोविंद पद जी ने उनसे एक सवाल पूछा, स्वम किम, तुम कौन हो? स्वम किम. तो इन्होंने गुरु आदि शंकराचार्य जी ने वहीं पर ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होके उन्होंने एक उत्तर दिया. और उन्होंने जो उत्तर दिया वही है निर्वाण शतकम. इट इज निर्वाण शतकम, नॉट शतकम. देयर इज अ डिफरेंस. शतकम इज 6 and shatakam is 100. So he has given the answer in 6 phrases. So what we are going to learn is मैं कौन हूँ इसका उत्तर मैं कौन नहीं हूँ. What I am not. तो अगर मैं कौन हूँ इसका उत्तर अगर हम ऐसे दें कि मैं जो नहीं हूँ वही मैं हूँ, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करता है. क्योंकि वेदांत में ये कहा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. The sentence says पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. अगर संपूर्ण में से संपूर्ण को ही हम निकाल दे तो जो शेष रह जाएगा वो भी संपूर्ण होगा. तो शंकराचार्य जी saying that our identity is what people are thinking is my body, my name, my karma kshetra, my presentation to other people, my behavior, my relationship, my nationality, my caste, my creed, and my existence is what is all fake. It's all because of attachment. So he is telling that if you want to live in peace, so don't literally detach कि मैं किसी से बात नहीं करता, मैं तो किसी से बाहर नहीं जाऊंगा, किसी से बात नहीं करना है ना. ऐसा नहीं होता है. He says to gain that छूता नहीं.
उसी प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के माध्यम से हमारे शरीर, our body, our mind, our relationship, our belief, our faith, ये सब कहाँ पे किस तरीके से हमको उलझाया हुआ है, उस उलझन को सुलझाने का तरीका, इट्स अ सॉल्यूशन और आई कैन से इट्स एन प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन जिन्होंने दिया है। हम क्या जानते हैं कि योग करो, टू गेट मोक्ष वी हैव टू डू योग। ही सेज डोंट डू योग, योग मीन्स कनेक्शन, ही सेज डिटैच योरसेल्फ, कनेक्शन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। दिस इज व्हाट निर्वाण स्तोत्रम इज। And why Shankaracharya is saying this? Because when we will go each and every phrase of this shloka, and it is a 6 phases, that means the upper triangle and the lower triangle. That's what is creating the universe, the Shiva, the Purusha, and the Shakti, the lower triangle. So he has very intelligently composed it in a 6 phase manner, and it is in Balaka Chanda. Balaka in Sanskrit literally means the crane. How cranes fly, our soul, our imagination should also fly like that. Balaka Chanda, and Balaka Chanda also, vibrations of Balaka Chanda हमारे चक्रों को वाइब्रेट करता है, हमारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को वाइब्रेट करता है, और हमारे अंदर जो पंच महाभूत के तत्व है, हमारे अंदर पंच वायु भी है, पंचकोश भी है, जिससे हमारा शरीर बना है, और सप्त धातु, इस तत्वों को हम किस तरीके से समझे और उसे अपने आप को किस तरीके से हील करें, ये भी प्रोसेस आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। तो निर्वाण शतकम हम देख के समझ रहे कि अरे बाप रे, ये तो बहुत कुछ बड़ा होगा, इसमें बहुत रहस्य है, बट फिर भी कुछ नहीं, ये उतना ही सिंपल है। बिकॉज ही वॉज गिविंग अ आंसर, बिकॉज जब वो आंसर दे रहे थे गुरु प्रभुपाद जी को, तो वो भी सोच में पड़ गए थे, मैं किस चीज का उत्तर दूं, मैं कौन हूं। तो उन्होंने ध्यानस्थ हुआ, और ध्यानस्थ होके सबसे पहला जो शब्द उनके मुंह से निकला, शिवोहम शिवोहम, यहीं से शिवोहम निकलता है। बिकॉज आदि शंकराचार्य जी बिलीव इन नॉन ड्युअलिटी। जो उपनिषद पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं, उपनिषद में 2 कॉन्सेप्ट हैं, ड्युअलिटी एंड नॉन ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मीन्स मैं और मेरा ईश्वर अलग, भक्त और भगवान अलग हो जाते हैं, एंड नॉन ड्युअलिटी इज मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अंदर ही, दैट इज द अद्वैतवाद, मेरे अंदर ही ईश्वर है। एंड आदि शंकराचार्य जी is the main leader of this non-duality concept. So he says, मनोबोध अहंकार चित्ता निनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने हमारे मानसिक विकृतियों के बारे में बताया है, जो हमारे आइडेंटिटी को इनहेंस करता है और प्रूफ करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 शब्द आए हैं, मनः, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 शब्द आए हैं। तो व्हाट इज मन? मन इज मेमोरी। इन दिस केस मन इज नॉट माई इमोशंस और मेरा मन यहाँ पे है मेरे मेमोरीज। एंड बुद्धि इज हियर इंटेलेक्ट, एंड चित्त इज इंटेलिजेंस, एंड अहंकार इज ईगो। तो मनः, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब मेरे दिमागी उपज है, what I am creating out of my mind. So this is also creating my identity as a human, because we are human, because we have 4 of these elements within us.
शंकराचार्य जी सेइंग कि आप इस उलझन में मत रहो कि मेरा मन ये कर रहा है तो मैं ये करूंगा, ये सही होगा क्या नहीं। नो, मेरी बुद्धि ये कह रही है, मैंने बुद्धि में ये नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। दैट डजंट मीन दैट। अहंकार, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाया, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं है, ये फॉल्स है। चित्त, दैट इज द इंटेलिजेंस, मेरे चैतन्य भाव मेरा क्या है, ये भी नहीं है। तो जो नहीं है उसको निकाल दो, जो रह जाएगा वो ही आप हो। और वो कहते हैं न च स्त्रोत्र जिह्वे, न मतलब नहीं, च मतलब एंड, तो न च स्त्रोत्र जिह्वे, यहाँ पे स्तोत्र नहीं श्रोत्र, देयर इज अ डिफरेंस। बहुत हम क्या उच्चारण कर देते हैं, स्त्र को स उच्चारण कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। श्रोत्र इज कान, राइट? आई एम नॉट ईयर, आई एम नॉट टंग, आई एम नॉट नोज, I am not I. So what we are doing with these senses, we are absorbing things, we are collecting the memories from everybody, we are recognizing ourselves with this identity. Okay, so he is telling neglect that, this is not your true identity. Then he says na cha vyoma bhumir na tejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham. I am not sky, I am not earth, I am not fire, I am not air. Now सोचने वाली ये बात है कि देखिए स्किन के बारे में नहीं बताया गया है और यहाँ पे वाटर के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसा क्यों है? ये शंकराचार्य जी ने दो तरीके से इसका आंसर दिया था। एक तो क्योंकि बलक छंद में आने के लिए, बलक छंद इज 7 बीट, जिसको हम कर्नाटिक म्यूजिक में मिश्र चाकू कहते हैं। 7 बिट्स में क्या होता है कि उन्होंने ये एक एक शब्द को निकाल दिया। अब देखिए वेरी मैथमेटिकली कि अगर आपके अंदर से आपकी दृष्टि, आपकी वाचन, आपके ग्राण और आपकी श्रवण की शक्ति चली जाती है तो स्पर्श की भी शक्ति चली जाएगी, है ना? वेरी नेचुरल। अगर आपके अंदर से बाकी सारे चतुर तत्व निकल जाए तो जल का तो कोई प्रमाण ही नहीं होता है, क्योंकि आपका शरीर ही नहीं रहेगा फिर। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने इंटेलिजेंटली इसको नहीं कहा, बट उन्होंने कहा, क्या कहा है? मैं कौन हूं? मैं हूं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जिसके चित्त में आनंद हो वही फॉर्मलेस, बॉन्डलेस शिव परम सत्य मैं हूं। अब ये जो श्लोक है हमको ये समझना पड़ेगा ये हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। Because whatever we are struggling is because of our survival. हम अपने आजीविका के लिए, हमको जीने के लिए जो भी उपज है उसके लिए हम लगे हुए हैं। बट शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम जीने के लिए जियोगे तो तुम नहीं जी पाओगे, अगर तुम जियोगे आनंद के लिए तभी तुम जी पाओगे। इसका बहुत ही गहरा तत्व है कि अगर हम खुशी के लिए जी रहे हैं, सपोज वी वांट, आई वांट दैट एवरीवन शुड बी हैप्पी, मैं सबको खुश रखूंगा, मैं सबको मदद करूंगा, मैं सबके साथ रहूंगा, ये नहीं होने वाला। अगर ये कह रहे हैं वो कि अपने आप को आप शोधन करो, अपने आप को आप खुश रखो, अपने आप को आप स्वस्थ रखो, तभी आप पूरे दुनिया को स्वस्थ रखोगे। किसी साधु ने कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि what we think we manifest that in our body, and what we manifest in our body we create relation according to it, and what we create relation according to it we create a society of that. So what we are thinking, Shankaracharya ji is saying, they think Chidananda Rupa, and what is that? Shivoham Shivoham. किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है चलो, उसका शरीर ने कहा, उसने नहीं कहा, क्योंकि अगर उसने कहा होता तो वो मैं हूं, क्योंकि आपके अंदर जो परमात्मा है वो मैं ही हूं। तो मैं आप जो बोल रहा हूं आपके शरीर को बोल रहा हूं, मैं अपने एक इंद्रिय से आपके और एक इंद्रियों को कम्युनिकेट कर रहा हूं। और इसी को ही शंकराचार्य जी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं
कि जगत में जो कुछ भी है दैट इज अ इल्यूशन, अ गिफ्ट ऑफ माया, जो आपको पकड़ के रखता है। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आपको इस जबरन पकड़न से मुक्त होना है तो इसी तत्व को रियलाइज करो कि आप में ये कोई बंधन है ही नहीं, और यही बंधन मुक्त विचार आपका औषधि है। दिस इज द परफेक्ट मेडिसिन दैट आई एम बॉन्डलेस, आई एम फॉर्मलेस। क्योंकि अगर हम किसी को पूछते हैं कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम अ पर्सन। आप जिससे परमिशन ले रहे हो वो भी तो बंधन में बंधा हुआ है, उसके अंदर भी तो फॉल्स है। बट आप मुझसे क्यों सुन रहे हो ये बात? क्या फिर आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि सर फिर हम आपसे क्यों सुन रहे हैं ये बात? आप भी तो बंधन में बंधे हुए हो, है ना? बात भी तो सही है। द थिंग इज दैट बंधन में रहकर भी निर्बंध का एहसास ही आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, है ना? सांसारिक होके हुए भी संसार मुक्त रहना, यही शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया था। तो अब हमको ये समझना है कि 6 श्लोकों में पहला श्लोक हमारे ब्रेन के बारे में, हमारी दिमागी उपज के बारे में बताया जा रहा है, हमारी सोच के बारे में बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नेक्स्ट श्लोक में वो हमारे शरीर के बारे में बताते हैं, हमारी शरीर कैसे बनी हुई है। ये भी बहुत रहस्य की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, बहुत सारे मिलियंस और मिलियन सेल्स हमारे बॉडी को बनाते हैं। बट आयुर्वेद एंड इंडियन फिलोसफी डजंट थिंक सो। Indian philosophy thinks there are only 27 materials that make your own body, and the same 27 materials is there in the universe. In Bengali, we say "Jaha ache bhande, taha acha brahmande." That means whatever there in the parts of your body, that is there in the Brahma. The same thing, the same component. So what is it? First is Panch Tattva. Second, Panchavayu. Next, Panchakosha. Next, Pancha Indriya. So 5 was the 20, and the next 7 is Sapta Dhatu. So there are 27 materials. And what are the 27 materials in the universe? 27 nakshatras. Like Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrigashira, Atra, Punarvasu, Posha, Shlesha. These 27 nakshatras has influence in the whole cosmos in which we are living. The earth is staying within us. So earth is around us, earth is within us, earth is under us. इसी तत्व को शंकराचार्य जी ने अगले श्लोक में बताया है। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि हम इसके वजह से बने हैं, वो ये भी बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि इसके विकारों के वजह से हम अपने जीवन में कितने बड़े प्रॉब्लम ला रहे हैं। और अगर हम इस विकारों को समझ के इसको नेग्लेक्ट करें, जस्ट नेग्लेक्ट, इग्नोर, ही सेज इग्नोर, क्योंकि अगर हम किसी को इंपॉर्टेंस देंगे तभी उनसे हमारा कम्युनिकेट होगा, और कम्युनिकेट जब होगा तभी वो हमने प्रभावित कर पाएंगे। अगर हम उनसे प्रभावित हुए तभी हम अपने आप से निकल जाएंगे, तभी हम ये सभी मोह द्वेष में फंस जाएंगे। तो बहुत सुंदर सा श्लोक है आगे वाला, मैं थोड़ा सा जा रहा हूं आगे। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं. He says, I am not prana sangyo. Prana sangyo means the
I think he's lost connection. Yeah, next time we'll arrange something for him to have better connectivity. And he's going very fast. We're अनुवाद। not being able to keep अब up. हम क्यों सीखें? I'll tell him to go slow. Yeah. Ritik, Yes, ma'am. बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो if you can go a little slow, ठीक है? Okay. Ma'am, I need to ask that पिछले वाले श्लोक जब मैंने मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इस लाइन में अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज मुझे पूछो कि आपने किस तरीके से इस लाइन को रियलाइज किया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। ये श्लोक, ये फर्स्ट लाइन आपके जीवन में आपने अभी जो सुना, इसमें किस तरीके से आपको प्रभावित करे, ये एक लाइन अगर कोई मुझे समझाए कि किस तरीके से आपको ये प्रभावित किया। I can see Vandana ma'am, I can see Paul Swaroop ma'am, I can see Anuradha ma'am, I can see Alka Jalan ma'am. So I'm understanding anybody that the first can word he want said to- was Om. And then he said that I'm not the man, buddhi, ankar and chit. So did he explain each Yes. one, how he is not the memory, how he's not the buddhi, or it was just taken for granted that it was understood? करेक्ट क्वेश्चन मैम, एकदम करेक्ट क्वेश्चन। यस, उन्होंने अपने शिष्यों से इस बारे में बताया था। जब शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुजी आपने तो उत्तर दे दिया, बट ये उत्तर का विश्लेषण हमें करो, कि आपने कहा कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, तो इसको आम आदमी कैसे समझे? जो हम रेगुलरली उठते हैं, काम करते हैं, सांसारिक सुख भोग से ग्रस्त हैं, तो वो इसको कैसे समझे? तो उन्होंने कहा कि मन हम जब जन्म लेते हैं तब से लेके मृत्यु तक हमारे मन में कौन प्रभाव डालता है? हमारी सोसाइटी। फर्स्ट आवर पेरेंट्स, देन आवर फैमिली, देन आवर सोसाइटी। So we never know what actually is my memory, because what our mana is constructing day by day is basically received and collective measures of what we are experiencing day by day, year by year, second by second. So maybe what we are experiencing is a showcase that they want us to see, just like the way they want to see us. इसीलिए मन, जो मेमोरी यहाँ कहा गया है, मन का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ मेमोरी किया गया है। उन्होंने कहा कि मेमोरी, तो मेमोरी मतलब उन्होंने नहीं कहा था, बाद में जब ऋषि मुनियों ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था तब मेमोरी का ये आया था, इंग्लिश वर्ड मेमोरी उन्होंने सेलेक्ट किया। इस तरीके से मन को उन्होंने नेग्लेक्ट किया कि चलो मेरा मन जो है वो बाहरी उपज से अफेक्टेड हो सकता है, इसलिए मैं मन नहीं हूँ। देन व्हाट इज बुद्धि? बुद्धि इज इंटेलेक्ट। हम ये जानते हैं कि हम सब कोई ना कोई बुद्धि लेके जन्म होते हैं, किसी का ज्यादा बुद्धि होता है, किसी का कम बुद्धि होता है, दैट इज द इंटेलेक्ट। दिस इज ऑल्सो अ बैरियर, बिकॉज अगर किसी के अंदर ज्यादा बुद्धि है, किसी के अंदर कम है, दैट इज मेजरेबल वन, and that is also according to the personal body. It is also referred as the measured person, like वो कहाँ जन्म लिया है, excuse me, उन्होंने कहाँ जन्म लिया है, his financial condition, उनका एजुकेशन कैसे हुआ,
उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किस सिचुएशन में पले बड़े हैं, ये सब उनकी बुद्धि के विकास का भी मेजर करता है। इसीलिए बुद्धि भी अडल्टरेटेड हो सकता है, इसलिए बुद्धि को भी उन्होंने निकाल दिया। चित्त, इंटेलिजेंस। अब चित्त कैसे प्रभावी होगा? जो पहाड़ों में रहता है उनका चित्त पहाड़ों जैसा है। जो हरी भरी खेतों के बीच, हरी भरी जंगलों में रहता है, उनका चित्त उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टू हो जाता है। जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनका चित्त उसी के हिसाब से होता है, और जो मरुभूमि में रहता है, रेगिस्तान के आसपास रहता है, उनका चित्त अकॉर्डिंग टू दैट हो जाता है। तो ये अगर प्रकृति के वैरायटीज, प्रकृति के प्रभाव के अंदर आ जाता है, सॉरी, तो वो भी रियलिटी नहीं है, बिकॉज प्रकृति इटसेल्फ इज माया, इज महामाया, इज कंटिन्यूअसली चेंज। तो क्या हमारा चित्त भी बदलते रहता है? अगर हमारा चित्त भी बदलते जाएगा तो हमारा ट्रू आइडेंटिटी भी बदलते जाएगा। तो व्हाट एवर इज चेंजिंग, व्हाट एवर इज नॉट नित्य, व्हाट एवर इज अनित्य, दैट इज नॉट ट्रू। अहंकार, अहम, मैं, ये महा अहम, ये मैं बोध इज बेसिकली कंट्रोल, टू गेट कंट्रोल ओवर अदर्स, कि मैं जो कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते, एंड हु नोज, जो तुम नहीं कर सकते वो और कोई कर सकता है। तो जब यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाए कि हाँ या ना, अगर कोई बोलेगा अहं तो सामने वाला भी बोलेगा अहं, तो सबके अंदर ये 3 अल्फाबेटिकल वर्ड ईगो है। तो आपको या तो उसके ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा या फिर आप उसको ईगो को हर्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे ईगो आ जाए वहां पे एक फेस मास्क आ जाता है, कि एक मुखौटा आ जाता है, वो पहन के इंसान चलने लगता है। तो उसने ये भी कहा था, इसीलिए मैंने अहंकार को भी त्याग दिया। तो मैं कौन नहीं हूं? मैं ना तो मन हूं, ना ही बुद्धि हूं, ना ही चित्त हूं, ना ही अहंकार हूं। तो ये जो चारों चीज मैं नहीं हूं वही मैं, यही कहते हैं शंकराचार्य जी। अब देखिए उन्होंने तो ऐसा सर, क्यों कहा कि आई एम नॉट द 5 सेंसेस? तो शंकराचार्य सारी जी मैम। मिथ्याएं जो हैं वो बता रहे हैं इसमें। जितना जीव मिथ्या के साथ रहता है वो सारे बता रहे हैं, मिथ्या, अनट्रुथ। मैम, शंकराचार्य जी इज टेलिंग टू disassociate ourselves from our identity, डिटैचमेंट के बारे में बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि whatever is changing is not your identity. That doesn't mean that that is false. वो नहीं है या फिर वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो भी चेंजेबल है, जो भी दूसरों के प्रभाव में आ सकता है, जो भी तुमको प्रभावित कर सकता है, वो तुम नहीं हो, तुम्हारा ट्रू सेल्फ नहीं है। वो सभी चीजों के अंदर से क्रीम निकाल रहे हैं, ट्रू सेल्फ को निकाल रहे हैं सबसे। ये सभी जो हम जिसको प्रकृति समझ रहे हैं, मतलब जहां पे अटैचमेंट है, वो चीजों से खुद को निकाल रहे हैं। क्योंकि जब वो उत्तर दे रहे थे अपने गुरु को, तब वो भी असमंजस में पड़ गए थे कि मैं क्या उत्तर दूं। एट दैट टाइम ही वाज चर्निंग हिमसेल्फ कि मैंने क्या उत्तर देना है। व्हाट ही वाज थॉट दैट आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं ना तो मन हूं, ना तो बुद्धि हूं, ना तो अहंकार हूं, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिटी है नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं चिदानंद रूप हूं, जो शिव है, जिसका निराकार है, जो फॉर्मलेस है। देखिए, निर्वाण शब्द जो आया है वो वान शब्द से आया है। वान शब्द मीन्स साउंड, लिटरली इन संस्कृत। तो अगर वान इज साउंड और अ फॉर्म, so nirvana is soundless or formless. So getting from vana to nirvana, and the bridge is
शिवोहम, द शिव इज द ब्रिज। वो शिव नहीं जो जटाधारी, चंद्रमाधारी, गले में मुंडमाला या सर्पधारी, वो सदाशिव है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। तो चिदानंद रूप, चिद आनंद, जिनके मन में हमेशा आनंद हो, या फिर जो आनंद स्वरूप हो, मन की बात मेरा गलत कहना हो गया, जो आनंद स्वरूप हो, जो आनंदमय शिव हो। शिव यानी अल्टीमेट ब्यूटीफुल ट्रुथ। जो अल्टीमेट ब्यूटीफुल ट्रुथ है, उसी परम सत्य को मैं हूं और वही मेरे अंदर है। मैम पूछिए। मैम किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं आप। क्या मैं नेक्स्ट श्लोक को एक्सप्लेन करूं? नच जिह्वा, उसको क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊं? Anybody has? किसी को anybody wants to ask anything or Next should line we में। continue? Are we all clear? Are we all clear with the first explanation of the first shloka? Please feel free to say if you all have any suggestions or anything till now. 27 उन्होंने क्या बताए थे? पंच तत्व, पंचवायु, पंचकोश, what else? हाँ मैम, यस मैम, यस मैम। सो हमारा जो शरीर बना है मैम, ये शरीर बेसिकली 27 एलिमेंट से बने हुए हैं। तो 27 एलिमेंट्स में फर्स्ट जो 5 एलिमेंट हैं, दैट इज पंच तत्व, दैट इज एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड space. I mean, fire, earth, air, water, and space. This is the Panchatattva. Next is Panchakosha. Panchakosha is 5 layers of our body, जिसको हम स्लिप भी कहते हैं। ये पंचकोश हैं: अन्नमय कोश, व्यानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश एंड मनोमय कोश। ये पंचकोश हैं। तो 5 5 10, 5 2 10 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पंच वायु आते हैं। ये पंच वायु क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये जो पंच वायु है, ये हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में विराजमान है और हमारे शरीर के संचालन में काम करता है। क्योंकि अगर ये वायु कहीं पर भी कुछ गलत हो गया तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को इंसोमिया हो जाएगा, किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ जाएगा। एज बिकॉज दिस पंच वायु इज स्टेबल इन अस एंड प्रेजेंट इन अस, उसीलिए हम अपने शरीर को लोकोमोशन में भी ला रहे हैं। अगर ये पंचवायु जब निकल जाता है हमारे शरीर से, उसीलिए मृत्यु उपरांत हमारा शरीर बहुत भारी हो जाता है, हम और हल्का नहीं रहते उस वक्त। तो ये पंचवायु हो गया, तो 15 हो गया। ये पंचवायु के बाद क्या निकल जाता है? पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय इज 5 सेंसेस: आईज, नोज, टंग, टच एंड ईयर। तो ये 5 सेंसेस हैं। तो अभी 20 हो गया, 5 और 5, 5 गुना 5 20 हो गया, 4 5 है 20 हो गया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 7 इज सप्त धातु। तो व्हाट इज सप्त धातु? सप्त धातु आर बेसिकली रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। रस is plasma, rakta is blood, mansa is flesh, medha is fat, asti is bone, majja is bone marrow, and shukra is genital fluid. ये सप्त धातु कहा गया है, जिससे हमारा पूर्ण शरीर को पूर्णता मिलती है। हमारा एक उपेक्ष शरीर बनता है इससे।
अब मैं जब डिटेल्स में जाऊंगा हमारे था, जिस तरीके से मैं फिर से पिछले श्लोक में जाता हूं, पिछले श्लोक के सेकंड लाइन में न च स्तोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र, यहाँ देखिए 4 इंद्रिय आ गया। उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं हूं। हेलो, हाँ जी। Ritik? can anybody hear me? Hello? Yeah, we can hear you. We can't see you right now. ओके 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 मैम। सो उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं जो मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं जो सुनता हूं वो वही शब्द है जो आपके जिह्वा से निकला है या फिर प्रकृति के किसी तत्व से निकला हो। तो वो मैनिपुलेटिव है, वो डिफरेंट जगह से टकरा के ईगो होके मेरे पास आया है और मेरे कान में आ रहे हैं। तो अगर मैं जो सुन रहा हूं वो चेंजेबल है तो वो मेरे लिए आइडेंटिटी नहीं है। लोग मुझे ऋतिक नाम से क्या बुलाते हैं, बट ऋतिक इज द नेम ऑफ माय बॉडी। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे शरीर को नाम दिया गया, मेरे ट्रू सेल्फ को नाम नहीं दिया गया। हम नाम क्या क्यों देते हैं, हम किसी चीज को नाम क्यों देते हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट, फॉर आवर सेल्फ कि ये है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन और फॉर एक्नॉलेजमेंट। बट अगर वो आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो जाए, कोई मुझे ऋतिक नाम से बुलाता है, मेरी माँ मुझे किसी और नाम से बुलाती है प्यार से, मुझे 10 लोग 10 अलग नाम से बुला सकते हैं जो वो समझते हैं कि मुझे बुलाना चाहिए प्यार से। तो जब मेरी आइडेंटिटी 10 लोगों के बीच में 10 हो जाए तो वो मेरी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए जो मेरा नाम मैं कान में सुन रहा हूँ वो मेरा आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए जो मैं सुन रहा हूँ वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट, टेस्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट जिह्वा। मैं जो बोल रहा हूँ वही है जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे विचार है वही का प्रकाश मैं अपने जिह्वा से कर रहा हूँ। अगर मेरे चित्त या फिर मेरे बुद्धि, मेरे मन, ये सब मैं नहीं हूँ तो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे मैं हो सकता हूँ? क्योंकि मैं जो सोचूंगा वही ना मैं बोलूंगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मैं नहीं हूँ। इसी तरीके से शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं जिह्वा नहीं हूँ। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, न घ्राण, नाक में जब हम कोई स्मेल लेते हैं, हम जो गंध लेते हैं, नाक वही गंध लेता है जो हमारी बुद्धि उसको रिकॉग्नाइज करती है कि यह गंध है, यही स्मेल है। अगर बुद्धि बोले कि नहीं ये स्मेल नहीं है तो वो नहीं ले पाएगा उस गंध को। तो जब हमारा नाक किसी और एक चीज के अंडर इन्फ्लुएंस्ड है, और उस बुद्धि को ही शंकराचार्य जी ने कहा कि वो मैनिपुलेटेड है, वो तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो मैं जो घ्राण ले रहा हूँ, जो मैं स्मेल ले रहा हूँ, वो भी मेरा ट्रू आइडेंटिटी नहीं हो सकता, राइट। हमने गुलाब को नाम दिया है, मैं अगर उसको कमल कहूँ या फिर उसको बॉटल कहूँ, वाटर बॉटल, तो वो मेरे लिए आइडेंटिटी है, बट आपके लिए वो रोज है। बचपन से मुझे ये सिखाया गया है कि ये रोज फ्लावर है और इसका गंध लोगे तो ऐसे आएगा। अगर मैं उसको कहूँ कि चंपा, जैस्मिन और समथिंग डिफरेंट अदर थिंग, तो मेरे लिए वो हो जाएगा, अगर मुझे बचपन से वही सिखाया होता। तो जो मेरे मेमोरी में है, मेरे मन में जो है,
वही उसी चीज का बाहिर प्रकाश मेरे गंध के स्वरूप में निकल रहा है, तो वो भी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है मेरा। दैट इज ऑल्सो अ फॉल्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट, नेत्र, सबसे बड़ी इल्यूजनरी चीज, आंखें। हमने बड़ी बड़ी कविताओं में, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के गाने में, गुलजार साहब की अनेकों गाथाओं में, लेखनियों में हमने सुना है कि आंखों का वर्णन हमेशा आया है। और हमने विष्णु जी का भी, हर एक देव देवी का एक ही कॉमन शब्द हमने देखा है कि कमल नेत्र, कमल लोचन। तो तृणार वृंद चक्षुषो, हमारे रावणोक्त शिवतांडव स्तोत्र में शिव जी को ये कहा गया है, तृणार वृंद चक्षुषो। तो और यानी कि हरी भरी घास की तरह ताजगी से भरी उनकी आंखें हैं। तो आंखों का वर्णन हमारी इंडियन फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंख को एक आईना माना गया है और आंख को दर्शन भी माना गया है। वाई? बिकॉज आंख से हम रिकलेक्ट करते हैं, जो भी हम सामने देख रहे हैं उसको कलेक्शन में लाने का काम हमारी आंखें करते हैं। यानी कि जो भी जगत बाहिर में दृश्यमान है उसको दृष्टि से देखना और अनुभव करना ही आंख है। तो जो भी बाहिर जगत परिवर्तनशील हो वो नित्य नहीं हो सकता। जो नित्य नहीं है वो असत्य है हमारे लिए, क्योंकि आज जो मेरे लिए सही है वो कल मेरे लिए गलत भी हो सकता है। जो कल मेरे लिए गलत है वो परसों मेरे लिए सही भी हो सकता है। इसीलिए जो हम देखते हैं वो शायद नहीं होता। जो हम बोलते हैं ना कि मैं जब तक अपने आंखों से नहीं देखता मैं नहीं मानता, एक्चुअली ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को ही कभी आंखों से नहीं देख पाते। हम हमेशा दूसरों की आंखों से अपने आप को देखते हैं, है ना। कोई रेडी होके या तैयार होके अच्छे से आके बोलता है ऋतिक मैं कैसा लग रहा हूँ, कि मैं कैसी लग रही हूँ। दैट मीन्स ही और शी वांट्स टू नो हाउ शी लुक फ्रॉम माई आईज। वो आईना क्या देखता है? आईना उनके आंखों का रिफ्लेक्शन करता है, बट वो खुद के आंखों से खुद को कभी नहीं देख पाता। वो हमेशा रिफ्लेक्टिव इमेज देखता है। तो जो जब भी कोई चीज रिफ्लेक्शन में आ जाए तभी वो अपनी सत्ता घुमा देता है, सत्ता को नष्ट कर देता है। और जब भी सत्ता नष्ट हो जाता है तो जो मैं देखता हूं वो भी असत्य है। इसीलिए ये मेरा ट्रू आइडेंटिटी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने आंखों को भी मेरा आइडेंटिटी नहीं कहा, उसको भी निकाल दिया। अब देखिए, जब मेरा जिह्वा नहीं है, जब मेरा नाक ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, जब मेरा श्रवण करने की शक्ति नहीं है, जब मेरा दृष्टि देखने का शक्ति नहीं है, तो कैसे मेरा स्पर्श करने का शक्ति हो? क्योंकि मेरा मन ही नहीं है, मेरा बुद्धि ही नहीं है, मेरा इंटेलिजेंस भी, जो भी कुछ मेरे पास है, जो मैं समझता हूँ मेरा खुद का है, वो मेरा ट्रू आइडेंटिटी है ही नहीं। तो मैं स्पर्श करके कैसे समझ लूं? इसीलिए उन्होंने स्पर्श को कहा ही नहीं, क्योंकि जब बाकी चार नेग्लेक्ट हो जाए तो इसका कोई वैल्यूएशन ही नहीं होता, स्पर्श का कोई वैल्यूएशन भी नहीं होता। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि न च व्योम भूमि न तेजो न वायु न, हियर मीन्स कि आई एम नॉट, च मीन्स एंड। ये व्हाट एम आई, इसको कहने के लिए उन्होंने बार बार कहा है व्हाट आई एम नॉट। तो अगर हम किसी चीज को छान ले बहुत अच्छी तरीके से, जो नहीं है वो चला जाएगा, जो रह जाएगा वो है। ये छानने का मशीन है निर्वाण स्तोत्रम। और इसको ना हमने मंत्र की तरह उन्होंने कहा है। वाइज मंत्र मन त्राटक इति मंत्रः, ये शास्त्रों में कहा गया है। व्हाट इज मन त्राटक इति मंत्रः? मन को एकाग्र करके उसको बार बार रिपीट करना ही मंत्र है। ये क्यों बार बार रिपीटेशन आएगा इसका? क्योंकि जो चीज को हम पुनः पुनः अभ्यास करते हैं वही हमारे ब्रेन में
हमारे दिमागी सोच में यही तथ्य बिठा देता है कि यही निर्वाण स्तोत्र में जो नहीं कहा गया है, मैं ऐसी गलतियां ना करूं ताकि मैं अपनी अंदरूनी शांति को विकृत ना कर पाऊं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि न व्योम वायु भूमि तेज, यानी कि मैं आकाश नहीं हूं। आकाश हमारे अंदर किस तरीके से काम करता है? आकाश हमारी शरीर के अंदर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आध्यात्म को आकाश कहता है। हमारी किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज को समझने की शक्ति को आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है। ये शायद बहुतों को नहीं पता था कि हमारे अंदर हाउ कैन आकाश तत्व बी एग्जिस्टिंग। आकाश तत्व को हम गलत तरीके से भी लेते थे। हम आत्मा को आकाश कहते थे, द सोल को हम स्काई एलिमेंट कहते थे, बट दैट इज एक्चुअली नॉट। ठीक है, आकाश तत्व, द स्काई एलिमेंट इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर टेलिंग टू यू एंड to realize what is going around you। ठीक है, तो अगर आप समझिए कि जब आप हर बार, हर समय, हर जगह आपका रियलाइजेशन बदलते रहता है, तो आकाश तत्व भी स्थान काल पात्र के हिसाब से बदलता रहेगा, मात्राएं बदलेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से वो बोला कि उन्होंने आकाश में नहीं हूं। नेक्स्ट भूमि। भूमि opaque in our body, just like skin, flesh, right? हम देखिए, हम जब बचपन में जन्म लिए थे और हम अभी जो है, इसके बीच में हमारा शरीर का परिवर्तन हुआ, हम दिखने में बदले, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आई, ब्लैक आई, डार्क सर्कल्स आए, मेरा हाइट बढ़ा, मेरे मसल्स ग्रोथ हुए, मुझ में तो दाढ़ी आया, मेरे बाल बढ़े, मेरे बाल झड़ गए, नाखून आया, मैंने नाखूनों को काटा, मेरे फिजिकलिटी में 100% चेंज आता रहा, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर। सो व्हेन माय बॉडी इज चेंजिंग, दैट मीन्स द अर्थ एलिमेंट विद इन मी इज ऑल्सो चेंजिंग, और जो नित्य नहीं है वो सत्य नहीं है। That is also not an identity for you. Next, Tejo. Tejo is the fire element, the essence of fire element within you. That is your body temperature, your temperament, your energy within you. कि आप किस क्षमता से कार्य करते हो, आपकी पाचन क्षमता कैसी है, डाइजेस्टिव पावर इज द फायर एलिमेंट। आप किस शक्ति से किसी चीज को फेस करते हो, टू फेस समथिंग, टू फेस एनी ऑब्स्टेकल इज द फायर एलिमेंट विद इन यू। सो ये तत्व जब सिचुएशन के हिसाब से, जब खान पान के हिसाब से, जब समय के हिसाब से बार बार चेंज होता रहे, बारिश में भीग लिया, बुखार आ गया, और अब तो बुखार की बात मत ही करो, सब डर जाएंगे। तो जब बुखार ही हमसे कंट्रोल नहीं होता है, तो फायर एलिमेंट कैसे स्थिर रह सकता है हमारे शरीर में? जब फायर एलिमेंट स्थिर नहीं है, so that is not the true identity of yourself. Next is वायु। जिस वायु को हम बार बार लेते हैं, बार बार रिलीज करते हैं, नाक से हो, मुंह से हो, कान से हो, आंख से हो, या फिर हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम से हो, जो वायु एक जगह स्थिर नहीं रहता, हर वक्त अपने स्वरूप को बदलते हुए हमारे शरीर में घूमता रहता है, वो वायु हमारा ट्रू आइडेंटिटी नहीं हो सकता। इसीलिए ये पंच महाभूत या फिर पंच इंद्रिय या फिर ये चार दिमाग की उपज जो है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये टोटल सिस्टम में मैं नहीं। आप हम सबको अब मुझे बताइए कि अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ फर्दर जानने हो, क्योंकि स्लो बाय स्लोली we will understand the other 5 shlokas and in more depth
and correct pronunciation. I want everyone you to please record it and send it to me if you are feeling good. क्योंकि इसको हम उच्चारण कैसे करेंगे? इसको बालका छंद से हम उच्चारण करते हैं. बालका छंद is na 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 na. A crane is flying. This is balaka chanda. मैं एक बार इस श्लोक को पढ़ता हूँ, आप एक बार सुनिए. The first श्लोक of निर्वाण स्तोत्रम. अहंकार चित्तानिनाहं न चक्रोत्र जिह्वे न चक्रान नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं. सभी को मेरा नमस्ते. मैम कुछ अगर आपको बताना है तो सुरेखा मैम, अलका मैम, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क. सबको अपना व्यू देना, कैसे करना है, स्लो करना है, कैसे आप लोग को ये सीखना है, कैसे पढ़ना है इसको, कि खाली मीनिंग सीखनी है. Please, everybody unmute and let us know. It will help us to prepare the class better because Ritik is very good. All that he may need is a little bit of guidance from us as to how to go about. So it will be Alka Bhabi, हाँ. we would like to learn how to recite it also. अच्छा, ठीक है. एक तो- recite सीख कर उसका meaning समझें, तो that might be a nice way also to do it. Okay. Ritik, so we must know how to recite. Everybody's got this stotra, or should we send it to all of you? No, it's available on YouTube and lots of things. Okay. And Okay. we've also got in our other group, we've got the explanation Vedanta also group. in a lot of detail. Okay. The Otherwise, literal Chachi, it can be put on the YouTube, on the WhatsApp group. The Yeah, I'll do note that. can be put on the WhatsApp group, and then everyone has it, or everyone Yeah. gets प्रिंट आउट निकाल लेंगे फिर अपना. हाँ. We'll take print out, please. That is better. And ओके Ritik, मैम, you- अगर आप मुझे कोई सजेशन दो, क्योंकि इसका एक लिटरल मीनिंग है, एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है और एक स्पिरिचुअल मीनिंग है. 3 मीनिंग में ये काम कर रहा है. मैंने आपको बस कुछ फिलोसॉफिकल मीनिंग बताया एंड मोस्ट ऑफ द लिटरल मीनिंग बताया. तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका स्पिरिचुअल मीनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट इन आवर लाइफ अगर मैं ये भी समझाऊं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ये पढ़ो एक बार और इसका सही उच्चारण सीखो, क्योंकि ये मंत्र है. ये इसके वर्ड जो है इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है कि अगर हम इसका उच्चारण कर दें तो ये एक मेडिसिन की तरह हमको काम करता है. और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्यों ये मेडिसिन है. क्योंकि अगर हम इसके करेक्ट छंद को करेक्ट तरीके से अगर हम उच्चारण नहीं करें तो हमारे करेक्ट चक्रास पे प्रेशर नहीं आएगा, करेक्ट बॉडी पार्ट पे प्रेशर नहीं आएगा. और जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि मैं जितना भी बोलता रहूं आप अब्जॉर्व नहीं कर पाओगे. तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे या फिर आप एक होमवर्क करके रखेंगे तो मेरे लिए और भी बेटर होगा. मेरे नहीं. वर्ड्स आपके लिए और भी शुद्ध हो जाएंगे. Next time we will recite with जी you, मैम. and then you must tell us the spiritual meaning and how Alka it's ji, effective. Alka ji, sorry to interrupt, but to हाँ. recite, everybody to recite with him will be very difficult. It will only create confusion. Individually, people can recite and send it to him. Okay. एक साथ अगर एक साथ सब जूम में बोलने की कोशिश करेंगे हाँ, ना, that वो is होएगा right. नहीं अलका जी. Oh, okay. बहुत कमोशन हो जाएगा. What we can do is कि we will all mute and recite, and he can recite, and we'll do it on Yes. our own, and we'll be Yes. on mute. That will be Okay, a better that way. way is also fine. That each individually but is everybody okay with like that amount of time that is taken? Now, depending on how many people decide to join today. So if 14 of us, but I think it will be a short shloka, so it's okay.
each one can decide. But then to rectify your mistake there, if you're wrong somewhere, it will take time. So rather individually record it and send it to him is what I feel. But as everybody is comfortable, if you're comfortable over the Zoom session to recite it, then we can also do that as everybody wants it. I think we should start it by reciting on our in the Zoom session, and if anybody wants to recite on your own, they can always open the YouTube. Done. We'll do that then. Take it. Take it. और इसकी spiritual meaning ऋतिक you have to tell us. ये तो literal meaning ज़्यादा कर रहा है, पर इससे क्या effect होता है? What is it about? वो ज़्यादा समझने की मन समझ. Right. Right. ऋतिक, are you there? He's not there. I think he's iska connectivity ka problem hai, Alka ji. So we'll just help him with that also. Yes, ma'am. Yeah, he's there. You have to tell us the spiritual meaning. How we can benefit from doing this. इसकी क्या महिमा? Literal meaning तो थोड़ा confusing किया है तुमने. थोड़ा और slowly और धीरे से करो. Because it's getting a little confused. And we must recite with you. We will recite muted. You will recite twice, thrice, so that we get it inside us. ठीक है? Okay, ma'am. और कुछ किसी को कहना और कुछ? वंदना? The literal translation I put on the thing. I'm just sending the recording tune also. No, but Vandana ji, any suggestion for the class? Anything that you feel that? Actually, Surekha, I'll talk to you. Actually, Parul also just called. You know, she said that since we've done so many of in the last 4 months, so many of Adi Shankaracharya's poems and stutis, I think we already know it quite deeply. Acha, ठीक है, not a problem. So do you want to do something else? Y'all can go ahead now if you're like with this. I can join when y'all do something else. उमा भाभी, आप भी बोलिए. आपको तुमको क्या सीखना था वही कर लेते हैं. नहीं, Alka ji, let's see how many are now willing to join this first, rather than starting a new one right now. Let's see how many are ready to join this class. Accordingly, we'll take a call then. Okay. Uma ji hai kya? Uma ji, are you there? Yeah, Alka Chachi, I am willing to join this class even. Okay. Because I've learned with Ritvik, a class में you just cannot judge, you know, and एक सामने बैठ के करो और एक Zoom पे करो, but I know how much depth Ritvik has. I've done his classes for 6 months, Vishnu Sahasranam, and I had really enjoyed it. Because he's not a teacher, na, he's a scholar. तो ये वैसे बता नहीं, teacher लोग तो अपना दूसरी तरह से बताते हैं. So we have to be a little patient with him. ऋतिक जी, आप हनुमान चालीसा का भी बताते हैं क्या? हाँ, बहुत सुंदर. मैम, आप जिस तरीके से पूछो, मैं हर एक चीज का उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ. ये गारंटी तो मैं दूंगा. मैं वास्तुशास्त्र से लेके स्पिरिचुअल वो सीखने का बहुत मन है. ऋत्विक इज जरूर. इवन मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि आफ्टर एवरी क्लास आई विल गिव डेफिनेटली अ टिप, a special tip regarding your health, regarding a vastu, regarding astro trip, जिसको अगर वो implement कर दो आप, तो शायद कोई परिवर्तन आ जाए. हाँ जी. Some remedies, some techniques, some usual mistakes what we do in our regular life, तो वो हम रिपीटेडली मिस्टेक करते रहते हैं, तो जिसको रेक्टिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. तो हर एक क्लास के अंत में मैं वो टिप्स देता रहूंगा ताकि ईश्वर क्लास के बाहर भी आपको कुछ और सीखने को मिले. ऋत्विक, आपकी न्यास की क्लास बहुत अच्छी थी. आपने जो अंग न्यास बताया था, इट वाज रियली गुड. हाँ मैम, थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली वो तो सिर्फ शुरुआत था. करेक्ट. एक आमने
So let us now end this meeting and let's take a call in the group that how many wish to continue and how many don't want to continue. Okay? Okay. Thanks, Rekha. Thank Thanks. you. Namaste. Hari Om. Okay. Bye, everybody. Bye. So, ma'am.